Hello students, welcome to this session. Today we are continuing Microbes Human Welfare chapter lecture 2. Already we have started this class. Yesterday we discussed about microbe human welfare introduction part. What are microbes, where they are present. So in today's class we are going to discuss mainly about microbes in household product. In household products. This is our first topic here. So in this topic we will cover what are the microbes that we are using in our daily life in houses for making different types of food. For example, here first we will make a list here. First, curd. Curd is a microbial product. In every house curd is made from the milk by using microbe, bacteria use करते हैं lactobacillus. Similarly, second one is cheese. Cheese is also a microbial product. Toddy is also a microbial product. Fourth one, fermented fish. Fermented fish and bamboo shoots. Okay, and the fifth one is after curd, cheese, toddy, fermented fish and bamboo shoots. The next fifth one is duff. Duff is also a microbial product in houses prepared from microbe. So all these are the different household products. Even idli and dosa is also mentioned in NCERT. Idli and dosa, that is also a microbial product. Okay, so first we will discuss this much part. The first point here, curd is prepared from the milk by the fermentation activity. What is fermentation? Fermentation is an anaerobic process. Fermentation is an anaerobic process, microbial activity where carbon dioxide gas is released. Okay, लिखेंगे. Fermentation is anaerobic microbial process in which carbon dioxide gas is released. Carbon dioxide gas is released. Okay, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. ठीक है. And the next point, all these are fermented products. Above list is fermented household products. हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स हैं ये, फर्मेंटेड हैं ये सारे के सारे. मतलब ऑल दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी. ये सारे के सारे माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनाते हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट वन, कर्ड. व्हाट इज कर्ड? कर्ड इज ए फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट. कर्ड क्या लिखेंगे? फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट लिखेंगे. First one we will write here, curd. Regarding curd we have to write something here. First point, curd is prepared by the fermentation of milk. It is prepared by using LAB. क्या यूज करना है? LAB यूज करना. What is LAB? Lactic acid bacteria. It is lactic acid bacteria. Okay, this bacteria mainly act on milk protein casein and precipitate the casein so that milk is converted into curd. मिल्क के अंदर एक प्रोटीन है कैसीन बोलकर, और वो कैसीन को जब आप फर्मेंटेशन करेंगे
कैसिन का प्रिसिपिटेशन करेंगे, देन मिल्क इज टर्निंग इनटू कर्ड। अब यहां पे ये भी पॉइंट लिखना है, कर्ड इज मोर न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल, कर्ड इज मोर न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल compared to milk. कर्ड इज मोर न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल, कर्ड ज्यादा वैल्यूएबल है मिल्क से अगर कंपेयर करेंगे तो कर्ड ज्यादा वैल्यूएबल है। इट हैज विटामिन B12, कर्ड के अंदर विटामिन B12 होता है विच इज एब्सेंट इन मिल्क, मिल्क में नहीं होता, वो कर्ड में होता है विटामिन B12। So any student, what is vitamin B12 chemical name? Vitamin B12 also called, point to be noted, vitamin B12 also called cyanocobalamin, cyanocobalamin भी बोलते हैं इसको। विटामिन B12 is also known as cyanocobalamin, ये याद रखना है। और एक बात जो है यहाँ पे, कर्ड prevents the growth of microbes. So while preparation of food, most of the Indian foods we add curd. So curd क्या है, एक acid है, so acid क्या करता है, it prevents the growth of microbes in food। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट करना है। Jalebi partially digest and coagulate the milk protein। What is the milk protein? जैसे मैं नाम बताया, कैसीन, मिल्क प्रोटीन कैसीन। सो जब भी आप कर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ऑलवेज वी आर एडिंग ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रीवियसली प्रिपेयर्ड कर्ड, so that small volume of previously prepared curd added into the milk, it has millions of jalebi, and those jalebi go into the milk and coagulate the milk protein casein। coagulate का मतलब है precipitate out the milk protein। So that's why if you see milk is like one liquid, right, one solution, but if you look at the curd के अंदर पूरा precipitated milk protein होता है, that is casein। ये point note करना है। A small amount of previously prepared curd, a small volume of previously prepared curd added into the milk, what we call it? A small volume of previously prepared curd added into the milk is called inoculum। क्या बोलेंगे इसको? inoculum बोलेंगे, और you can call it as starter also, या starter भी बोल सकते हैं, inoculum भी बोल सकते हैं, starter भी बोल सकते हैं। So inoculum contain millions of jalebi। inoculum के अंदर क्या होते हैं? Millions of jalebi। What is inoculum? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रीवियसली प्रिपेयर्ड कर्ड। जैसे हम मिल्क में क्या करते हैं, एक स्पून जो है कर्ड डाल देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड inoculum। सो inoculum contain millions of jalebi। inoculum contain millions of jalebi, ये याद रखना है। So इतना इंफॉर्मेशन हम कर्ड से रिलेटेड याद रखेंगे। ओके, गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ कर्ड।
अब आएंगे हम चीज की तरफ। चीज क्या है देखेंगे। कर्ड के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ओके, नाउ लेट अस गो टू चीज। फर्स्ट पॉइंट हियर, चीज में याद रखना है, व्हाट इज चीज? चीज इज आल्सो ए फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। Fermented milk product, it is having concentrated fermented mass of milk protein and fat. What is cheese? Fermented milk product है, fermented milk product है। Okay, it is concentrated comma fermented mass of milk, fat and protein casein। ठीक है, क्या होता है देखिए चीज के अंदर है फैट और प्रोटीन। मिल्क का प्रोटीन जो है कैसीन है। सो इट इज अ फर्मेंटेड मीन्स इट इज अ माइक्रोबियल प्रोसेस। फॉर माइक्रोब यूज होता है इसके अंदर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत सारे टाइप के चीज हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज, depends on texture, flavor। ओके, टेक्सचर अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज के टेक्सचर अलग हैं, फ्लेवर अलग हैं, टेस्ट। It depends on type of microbe used। It depends on type of microbe used। कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड होता है। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माइक्रोब यूज्ड। सो मेन टू टाइप्स ऑफ चीज हैं। चलिए, मेन टू टाइप्स, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के चीज हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ चीज। एक होता है देखिए भाई, स्विस चीज है, स्विस चीज है एक। What is the characteristic of Swiss cheese? Swiss cheese क्या है? Special large holes can be seen on Swiss cheese. Large holes on the surface of Swiss cheese are formed due to the release of carbon dioxide gas by Propionibacterium shermani। Propionibacterium shermani। तो देखिए स्विस चीज कैसा आइडेंटिफाई करेंगे आप? हाउ टू आइडेंटिफाई स्विस चीज? स्विस चीज इज आइडेंटिफाइड बाय द कैरेक्टरिस्टिक होल्स ऑन द सरफेस ऑफ स्विस चीज ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम ये चीज देखेंगे, स्विस चीज के ऊपर ऐसे लार्ज होल्स होंगे, लाइक दिस। This is what Swiss cheese। And why the large holes are formed? Whether they are made artificially? No, it is formed. These large holes are formed due to the release of carbon dioxide by the microbial activity। जो microbe use हो रहा है in the preparation of Swiss cheese is Propionibacterium shermani। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में ज्यादातर पूछेगा आपको नेम ऑफ द माइक्रोब इन द प्रिपरेशन ऑफ स्विस चीज। स्विस चीज बनाते वक्त हम कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हैं? Propionibacterium shermani। And how to identify Swiss cheese? Large holes on its surface। This is the characteristic feature of Swiss cheese। Next type of cheese, mainly two type के चीज हैं। Cheese is nothing but concentrated fermented milk protein and fat। और एक चीज है रॉकी फोर्ट चीज।
So now the second type of cheese, Roquefort cheese, it is fermented by फंगस. एक फंगस से फर्मेंटेशन करेंगे इसका. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंगस? पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई. पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई. So one type of cheese is prepared by the microbial bacterial activity. Another type, that is Roquefort cheese, produced by the activity of fungus. Penicillium roqueforti क्या है? Actually एक फंगस है. फंगस से फर्मेंटेशन कर रहे हैं. And it has greenish blue mottling. It has greenish blue. It has greenish blue mottling due to this fungus. मतलब क्या है? ये टाइप की जो चीज है रॉकीफोर्ट चीज, इसका जो अपीयरेंस है ग्रीनिश ब्लू कलर है. इट हैज ग्रीनिश ब्लू कलर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगस पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई. So this fungus characteristically adding color as well as some flavor as well as color is added to the cheese, that is called Roquefort cheese. ये था Roquefort cheese. Okay. Next. After the types of cheese, दो टाइप की चीज पढ़ लिए हैं. देखिए, स्विस चीज लार्ज होल्स, Roquefort चीज ब्लूइश ग्रीन कलर. ब्लूइश ग्रीन कलर किस वजह से है? दैट इज ड्यू टू द फंगस पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई. पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई की वजह से है वो ब्लूइश ग्रीन कलर. नेक्स्ट थर्ड वन टॉडी. टॉडी क्या है? देखिए, टॉडी इज ए फर्मेंटेड नेचुरल ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सैप ऑफ पाम ट्रीज इन साउथ इंडिया. फर्मेंटेड ड्रिंक है ये, prepared from the sap of palm trees in South India. Okay, palm trees जो होते हैं like this, they are very tall palm trees. और ये palm trees में क्या करते हैं? A hole is made on the stem. यहाँ पे एक होल कर देते हैं स्टेम के ऊपर. एंड फ्रॉम दिस ड्रॉप बाय ड्रॉप ए लिक्विड इज कमिंग आउट एंड दैट लिक्विड इज कलेक्टेड इन ए पॉट. उसको कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, 12 आवर्स ऐसे रख देते हैं. फर्मेंटेशन होता है उसके अंदर, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. बिकॉज ऑफ दैट फर्मेंटेशन ऑकर हियर. फर्मेंटेशन के बाद ये टॉडी को निकाल लेते हैं. टॉडी is collected from the stem of palm trees by the process of bleeding. Bleeding क्या है? If you make an injury on the stem के ऊपर एक इंजुरी कर दीजिए, एक होल कर दीजिए, and from that hole liquid is coming out. Drop by drop a liquid is coming out and that liquid is collected in a pot. के अंदर कलेक्ट हो जाता है. that is called toddy. toddy कहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं हम? साउथ इंडिया में प्रिपेयर कर रहे हैं. It is prepared in South India. Very famous drink in South India from the palm trees. It is collected by what process? Bleeding. It is fermented by bacteria. Various bacteria are fermenting it, not particular name. चलिए नेक्स्ट. आफ्टर टॉडी के बाद, अब हम टॉडी के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे fermented fish and fermented bamboo shoots are very popular.
Fermented fish and fermented bamboo shoots are very popular in foreign countries. They are prepared, they are cooked and they are kept overnight. Fermented fish and bamboo shoots they are cooked and kept overnight where natural fermentation occurs. Naturally microbes grow and fermentation occurs which add characteristic flavor जो flavor add कर देते हैं वो food में. This is also very important. Fermented fish and bamboo shoots. Bamboo plant के shoot जो होते हैं, tip होते हैं, they are also used as vegetable. They are kept overnight. Cook करके overnight रख देना है. Naturally उसमें microbes grow होते हैं and they add characteristic flavor in that. Next, the puff appearance of duff of dosa and idli is due to the release of carbon dioxide by bacteria. Puffed up appearance of duff used in preparation of idli, dosa, okay, bread are due to release of carbon dioxide, release of carbon dioxide gas. देखिए यहाँ पर क्या है, whenever you look at a bread देखिए या इडली देखिए या डोसा देखिए, you will find, suppose this is the bread, you will find several openings, है ना, बहुत सारे openings, छोटे छोटे small openings होते हैं. That openings are due to what process? That process, which process is really making such a puffed up appearance or small porous nature on the surface of bread? They are all due to release of carbon dioxide gas. किस वजह से हो रहा है ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने से हो रहा है फ्रॉम इडली, डोसा एंड ब्रेड. ओके, क्वेश्चन पूछेंगे, बाय व्हाट प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज? फर्मेंटेशन. During fermentation, carbon dioxide is released and swelling occur in the duff. The process is called release of carbon dioxide and swelling of duff. Due to fermentation is called leavening. क्या बोलेंगे उसको? leavening बोलेंगे उसको. leavening बोलेंगे वो प्रोसेस को. ये भी याद रखना है. So bread में swelling होती है. Even in the preparation of idli and dosa also there is swelling. That swelling is due to the release of carbon dioxide gas, accumulation of carbon dioxide gas, and because that process is called leavening. बोल रहे हैं उसको, leavening बोल रहे हैं. चलिए next. In the preparation of bread, what we are using? In the preparation of bread, we use baker's yeast. Saccharomyces cerevisiae. In the preparation of bread we use baker's yeast. कौन सी baker's yeast यूज कर रहे हैं हम? Saccharomyces cerevisiae. ठीक है. ये
बेकर्स ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ yeast, baker's yeast and brewer's yeast. So they differ only in the condition where they are growing. Baker's yeast grow aerobically, brewer's yeast grow anaerobically. Brewers मतलब जहां पे अल्कोहल वाइन वगैरह बना रहे हैं. नोट, बेकर्स मतलब बेकरीज में वगैरह. बेकर्स ईस्ट ग्रो एरोबिकली बोलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. Baker's yeast grow aerobically and brewer's yeast grow anaerobically. ब्रीवर्स मतलब जहां पे आप अल्कोहल वाइन वगैरह बना रहे हैं, दैट इज ब्रीवर्स. ब्रीवरीज, बेकर्स बेकरीज, केक मेकिंग, ब्रेड मेकिंग. So anyhow both the yeast, जो भी yeast हो, बेकर्स ईस्ट हो या ब्रीवर्स ईस्ट हो, वी हैव टू कॉल इट एज सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया ओनली. इसको हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया ही बोलेंगे. बट दे डिफर इन द कंडीशन वेयर दे आर ग्रोइंग. तो ये सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट थे. एंड वन मोर थिंग, इन द प्रिपरेशन ऑफ इडली एंड डोसा व्हाट वी यूज, in the preparation of idli and dosa, rice and black gram are used. Black gram are used. ठीक है. It is fermented. It is fermented by, fermentation करने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज है? It is fermented by number 1 Streptococcus faecalis. Streptococcus faecalis. और सेकेंड है ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड्स. ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड्स. ये कहां से होता है? Streptococcus faecalis. Streptococcus faecalis is from the hands of cook. From the hands of cook. और ये ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड is from the surface of seed grains. वो सीड के ऊपर ही होते हैं, सीड ग्रेन्स. So idli and dosa, in the preparation of idli and dosa, what we do, rice and black gram are grinded and they are kept overnight, and the cook properly mixes the content. And while mixing the content, the hands of the cook, जो preparer जो है, cook है, उसके hand पे एक bacteria Streptococcus faecalis that is added into the mixture, as well as there is one more bacteria Leuconostoc mesenteroid from the surface of seed grains. Both the bacteria together they fermented the process of idli and dosa preparation. Okay, इतना याद रखेंगे. These are all microbes in household product बोलेंगे इनको हम. So after microbes in household product, let us go to next topic, microbes in industrial product. Microbes in industrial product. देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है माइक्रोबियम एंड वेलफेयर, बट अगर हम सिस्टमैटिकली करेंगे तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन भी बन जाएगा, नीट का क्वेश्चन भी बन जाएगा. देखिए, सो देयर आर headings: microbes in household product, microbe in industrial product, microbes in sewage treatment, microbes in biogas, microbes in biocontrol agent, microbes in biofertilizer. 6 टॉपिक्स हैं. सिंपल है ना, सिर्फ आपको माइक्रोब के नाम याद रखना है, आगे बढ़ना है. ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. व्हाट आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स where we are using microorganism for their production? तो यहाँ पे लिस्ट बना लेंगे पहले. First we will make a list of industrial product. Number 1, alcoholic beverages. Alcoholic beverages number 1. Second है antibiotics. Antibiotics हैं. Third one, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं.
फोर्थ वन एंजाइम्स हैं, एंड द फिफ्थ वन इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। सो ये सारे माइक्रोब्स एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस में क्या क्या यूज करते हैं हम, हाउ दे आर फर्मेंटेड एंड हाउ दे आर मेड, प्रोसीजर वगैरह पढ़ेंगे हम। एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, सब में एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल और नेम ऑफ द माइक्रोब वी हैव टू सी। द फर्स्ट वन अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस में हम क्या पढ़ना है, देखिए। नंबर वन, alcoholic beverages means alcoholic drinks which are used as refreshment। जो refreshment drinks होते हैं उनको हम beverages बोलते हैं। Even tea, coffee, they are also beverages। दो टाइप के beverages होते हैं। beverage का मतलब क्या है? beverage का मतलब क्या है? refreshment drink। ठीक है, अब दो टाइप के beverage होते हैं भाई। beverage में दो टाइप होते हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है और नॉन अल्कोहलिक है हम उसकी बात नहीं कर रहे। वी आर डिस्कसिंग हियर अल्कोहलिक बेवरेजेस। ओके, इन अल्कोहलिक बेवरेज क्या है? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ब्रीवर्स ईस्ट। अल्कोहलिक बेवरेज आर प्रिपेयर्ड by using microbe। कौन सी माइक्रोब? ब्रीवर्स ईस्ट यूज करना है इसमें, ब्रीवर्स ईस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रीवर्स ईस्ट? ब्रीवर्स ईस्ट किसको बोलेंगे? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। अगेन सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया ही बोलना है। यस, डोंट कंफ्यूज स्टूडेंट। अगर आप ये सोचकर परेशान हैं कि ब्रेड बनाने के लिए भी सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया यूज करेंगे, वाइन बनाने के लिए भी सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया यूज करेंगे, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। द डिफरेंस इज द कंडीशन वेयर दे आर ग्रोइंग। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया इन बेकरीज ग्रोइंग एरोबिकली, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया इन ब्रीवरीज आर ग्रोइंग एनारोबिकली। दिस इज द डिफरेंस, बेसिक। ओके, ये अलग से नोट करना है आपको। ब्रीवर्स ईस्ट इज ग्रोइंग एनारोबिकली, याद रखना है। नेक्स्ट, फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट, व्हाट वी यूज कंटेनर्स, लार्ज कंटेनर्स कॉल्ड फर्मेंटर। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जैसे अब अल्कोहल वाइन बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, 1000 लीटर और मोर देन दैट, लार्ज स्केल। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, large containers are used, large containers are used which maintain the growth of microorganism, which maintain the growth of desired microorganism, the growth of desired microorganism. They are called, क्या बोलेंगे? They are called fermenters बोलेंगे इनको हम, क्या बोलेंगे? फर्मेंटर्स बोलेंगे। ठीक है, व्हाट इज फर्मेंटर? दीज आर लार्ज कंटेनर्स। फर्मेंटर्स बोलो या आप इसको बायोरिएक्टर भी बोल सकते हैं। बिग कंटेनर्स है, समझो। इमेजिन ए स्टेनलेस स्टील टैंक ऑफ 1000 लीटर कैपेसिटी और 10,000 लीटर्स कैपेसिटी, सच बिग टैंक्स, दे आर कॉल्ड फर्मेंटर्स, which are used for large scale production। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना है तब यूज करते हैं हम फर्मेंटर या बायोरिएक्टर। Different types of alcoholic drinks based on material
raw material. There are different types of alcohol, different types of alcoholic drinks, based on type of raw material, रॉ मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं वो भी देखा जाता है, एंड आल्सो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल भी देखा जाता है। वहां पर कितना परसेंटेज है अल्कोहल का वो भी देखना होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, उनके रॉ मटेरियल अलग अलग होते हैं, and also percentage of alcohol is also differing from one type of alcoholic drink to another type of alcoholic drink. So दो टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं यहाँ पर, डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अनडिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अनडिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स में क्या क्या आता है देखिए जरा। Undistilled alcoholic drinks are having less percentage of alcohol. Less percentage of alcohol बोलेंगे, less percentage of alcohol. एग्जाम्पल देखिए, वाइन है और बियर है। वाइन जो है प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट juices like grape juice or apple juice, like that, different types of fruit juices. और बियर जो है फ्रॉम बार्ली ग्रेन्स यूज करते हैं, बार्ली ग्रेन्स। सो अनडिस्टिल्ड अल्कोहल मतलब दे आर प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन, नाम में लिखा हुआ है। अनडिस्टिल्ड मतलब विदाउट डिस्टिलेशन, ओके, विदाउट डिस्टिलेशन बोलेंगे हम, इसलिए इनके पास परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज आल्सो वेरी लेस। कितना लेस बोल तो कितना परसेंटेज, लेस देन 13% अल्कोहल, लेस देन 13% अल्कोहल, बिकॉज naturally fermented drinks are having less than 13% of alcohol, naturally fermented, because you know all first year में आप पढ़े हैं Saccharomyces cerevisiae can produce alcohol up to 13%, and above 13% yeast Saccharomyces cerevisiae dies above 13% of alcohol. 13% तक जो है आप नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक्स में आपको अल्कोहल का परसेंटेज मिलेगा, ये पॉइंट नोट करना है। नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक्स can have alcohol up to 13%, इससे ज्यादा नहीं, up to 13% हो सकता है नेचुरल में। If above 13% is obtained, that is obtained by what process? Distillation, purification process से आप अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, बट नेचुरली 13% तक ही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ अल्कोहल, distilled alcoholic drinks. इसमें लिखेंगे more percentage of alcohol. अब यहाँ पे 40-45% अल्कोहल तक रह सकता है, 40%, 45%, 20%, ऐसा अलग अलग परसेंटेज के अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। So anyhow they are having high percentage of alcohol. They are also called hard liquors. Hard liquors भी बोल सकते हैं इनको also. अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं एग्जाम्पल? विस्की, ब्रांडी, रम। एग्जाम्पल विस्की, ब्रांडी, रम एंड जिन। ये जो है ज्यादा परसेंटेज के अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, अराउंड 40% अल्कोहल, अप टू 40% अल्कोहल तक हो सकता है इसमें। ये हार्ड लिकर्स भी बोलते हैं इनको,
एंड दे आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस. नाम में लिखा हो ना डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड मतलब दे आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस. ओके, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. तो ये था अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बारे में, इतना इंफॉर्मेशन याद रखना है. यहां पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है, डू यू रिकॉल द रिएक्शंस ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और डू यू रिकलेक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. बिकॉज फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हैं ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, नोट लिखेंगे. एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है. सो ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है जरा लिखेंगे. पहला स्टेप होता है ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 NaDH2 प्लस 2 ATP. ओके, ये कौन सा स्टेप है? ये ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं भाई. व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. ग्लूकोज ब्रेक होकर 2 पायरुविक एसिड और 2 NaDH2 और 2 ATP में कन्वर्ट हो जाता है. अब नेक्स्ट स्टेप में 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड ब्रेकडाउन into 2 acetaldehyde, acetaldehyde plus 2 carbon dioxide gas. So this step is called decarboxylation. Decarboxylation. आपको मैं बता रहा हूं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन से रिएक्शन होते हैं. ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन फर्स्ट ग्लूकोज ब्रेकडाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड and those same pyruvic acid undergo decarboxylase, decarboxylation होता है यहाँ पर, and that decarboxylation produces 2 acetaldehyde. pyruvate decarboxylase enzyme, कौन सा एंजाइम? pyruvate decarboxylase enzyme is used. acetaldehyde, एसिटाल्डिहाइड यू नो ऑल, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं. सो 1 कार्बन डाइ. सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ये याद रखना है. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड व्हाट हैपेंस? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. अब देखिए ये 2 एसिटाल्डिहाइड इधर लाइए, the same 2 acetaldehyde plus first step में जो NaDH2 बने थे ना, that NaDH2 also acetaldehyde plus 2 NaDH2 converted into 2 ethanol, 2 ethanol plus 2 NAD plus हाइड्रोजन ऐड हो गए. ये स्टेप कौन सा है? रिडक्शन स्टेप है. रिडक्शन. रिडक्शन कैसे? NaDH2 is giving its hydrogen to acetaldehyde. H2 is added into acetaldehyde. So रिडक्शन हो जाता है. एसिटाल्डिहाइड का अगर आपको फॉर्मूला याद है CH3CHO. CH3CHO is converted into C2H5OH. इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहां पर आप देख रहे हैं देयर इज अ डिफरेंस इन हाइड्रोजन. सो यहां पर रिडक्शन हो रहा होगा कंपलसरी. सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी होगा. इन बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी देयर इज ए क्वेश्चन, डू यू रिकलेक्ट द रिएक्शंस ऑकरिंग ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो ये 3 स्टेप याद रखना है. ये रिडक्शन हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड ये होता है इथेनॉल. ओके, लाइक दैट. चलिए अब हम जो है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की ओर बढ़ेंगे आफ्टर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दैट इज एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे हम अब. चलिए एंटीबायोटिक्स की तरफ. व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? लिखिए सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंटीबायोटिक्स.
बताइए एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब क्या है? एंटी का मतलब अगेंस्ट, एंटी का मतलब होगा अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ. वाई दे आर कॉल्ड सो? एंटी अगेंस्ट लाइफ ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, chemical substances produced by some microorganism, produced by some microorganism, कुछ microorganism से produce होता है, produced by some microorganisms and are used to kill some other microorganisms, some other microorganisms. समझ रहे हैं आप? एंटीबायोटिक्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है वो, दैट इज एंटीबायोटिक. टर्म एंटीबायोटिक वाज गिवन बाय, टर्म एंटीबायोटिक कौन दिए? टर्म एंटीबायोटिक गिवन बाय Salmon Waxman. Salmon Waxman. First effective antibiotic discovered by. First effective antibiotic discovered by Alexander Fleming. फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था दैट इज बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोलना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. दिस इज द फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक. क्लियर है? एंटीबायोटिक्स आर आल्सो कॉल्ड प्रो लाइफ. एंटीबायोटिक्स आर आल्सो कॉल्ड प्रो लाइफ, also called pro-life because they protect human life, because they protect human life, because they protect human life from deadly bacteria. देखिए एंटीबायोटिक को दोनों वर्ड यूज किए हैं. एंटीबायोटिक्स आर आल्सो कॉल्ड प्रो लाइफ, एंटीबायोटिक्स आर आल्सो कॉल्ड अगेंस्ट लाइफ. दोनों अलग अलग टाइम पे यूज करना है. एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड प्रो लाइफ बिकॉज दे प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ, एंड एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड अगेंस्ट लाइफ बिकॉज दे किल डेडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई अगेंस्ट लाइफ भी बोलना है, प्रो लाइफ भी बोलना है, डिफरेंट टाइम्स. ओके, नेक्स्ट Alexander Fleming noted what he observed. Alexander Fleming accidental discovery थी पेनिसिलिन की. पेनिसिलिन discovery accidental, was accidental. अचानक ऐसे ही डिस्कवर हो गया था वो. Fleming observed Penicillium notatum fungus. Penicillium notatum fungus releasing some secretions which kill or inhibit growth of Staphylococcus bacteria. Staphylococcus bacteria in his culture plate. In his culture plates. So what Alexander Fleming observed? Alexander Fleming observed that Penicillium notatum जो है fungus है, Penicillium notatum, and that Penicillium notatum releasing some secretion which kills or inhibits growth of Staphylococcus bacteria.
दिस वाज द डिस्कवरी। स्टैफिलोकोकस को हम बोलेंगे पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। जब भी ऊंड हो जाते हैं, ऊंड के अंदर पस फॉर्मेशन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैफिलोकोकस, स्टैफिलोकोकस की वजह से। द अफेक्टिव पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो ये तो डिस्कवरी एक्सीडेंटल था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व्ड दैट पेनिसिलियम नोटाटम releasing some secretion which kills or inhibit the growth of which bacteria? Staphylococcus bacteria. Next, अभी हम लिस्ट बनाएंगे एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर, Alexander Fleming, he discovered penicillin antibiotic accidentally. He observed Penicillium notatum fungus inhibit the growth of Staphylococcus bacteria. Okay, उसके बाद क्या हुआ देखिए। Next, effective potential of the penicillin antibiotic. Effective potential of penicillin antibiotic. Effective potential of penicillin antibiotic discovered by Ernst Chain, Howard Florey. Ernst Chain and Howard Florey. So first Alexander Fleming, he discovered penicillin, but उसका रोल जो है effective potential of the penicillin antibiotic was given by Ernst Chain and Howard Florey. ये दोनों मिलकर डिस्कवर करते हैं effective potential. And the antibiotic penicillin was first time widely used for the treatment of penicillin was widely used for treatment of injured soldiers of World War II. वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा यूज किया गया इसको। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में बहुत ज्यादा यूज करे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। फॉर दैट पर्पस 3 लोगों को जो है नोबेल प्राइज मिलता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे। अर्न्स्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे भी बोल सकते हैं, फुल नेम लिखिए। फ्लेमिंग, चेन, अर्न्स्ट चेन एंड फ्लोरे awarded by Nobel Prize. ये डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी बिकॉज एंटीबायोटिक आर वाइडली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक तो पेनिसिलिन ही था। And nowadays we are having several hundreds of microbe antibiotic. बहुत सारे एंटीबायोटिक आज हमें पता है। Let us list out some of the important antibiotic. जैसे मैं लिख रहा हूं स्ट्रिप्टोमाइसिन बोल के एक एंटीबायोटिक आता है and it is obtained by bacteria Streptomyces griseus. Name of the bacteria Streptomyces griseus. यहां पे एंटीबायोटिक लिखेंगे हम, यहां पर माइक्रोब लिखेंगे, ठीक है। From which microbe it is prepared? Streptomycin antibiotic is prepared from which bacteria? Streptomyces griseus. The second antibiotic एरिथ्रोमाइसिन बोल के आता है। एरिथ्रोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस
यहाँ पे स्पीशीज चेंज हो रही है, एरिथ्रियस, एरिथ्रियस, एरिथ्रोमाइसिन इज फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं। क्लोरोएम्फेनिकॉल बोल के एक आता, क्लोरोएम्फेनिकॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्लोरोएम्फेनिकॉल, Chloramphenicol is obtained from again Streptomyces species venezuelae, Streptomyces venezuelae. Nowadays antibiotics are used for treatment of deadly diseases, deadly diseases. Antibiotics are used for treatment of diseases, used for treatment of diseases, bacterial diseases, okay, bacterial diseases. Like, let us list out some of the deadly diseases. Number 1, whooping cough. Whooping cough क्या है ये? It was previously called काली खांसी. और एक ऐसे डिजीज होती है डिप्थेरिया, diphtheria also called gall-ghotu disease. Nowadays the number of these diseases has decreased. Previously बहुत ज़्यादा होते थे disease, अब ये कम होते जा रहे हैं because of antibiotics. Third one, leprosy. Leprosy क्या है ये? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग. गाल-घोटू, इन गाल-घोटू और डिप्थेरिया डिसीज फेरिंग्स गेट्स अफेक्टेड, फेरिंग्स जो होता है. लेप्रोसी, कुष्ठ रोग बैक्टीरियल डिसीज है. द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड विथ लेप्रोसी दे आर केप्ट अवे फ्रॉम द सोसाइटी, बाहर, गांव के बाहर रख देते हैं इन लोगों को. लेप्रोसी, ओके, दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ वर्क बिकॉज इट इज हाईली कम्युनिकेबल डिसीज, बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है. ठीक है, ये सारे बैक्टीरियल डिसीजेस. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, नोट, एंटीबायोटिक्स कैनॉट किल वायरसेस. एंटीबायोटिक्स कैनॉट किल वायरसेस. एंटीबायोटिक्स वायरसेस को किल नहीं कर सकते. हाँ, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, बट इट कैनॉट किल वायरसेस. ओके, so far what are the things we have discussed. देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक याद रखेंगे, स्ट्रिप्टोमाइसिन याद रखेंगे, क्लोरोएम्फेनिकॉल याद रखेंगे, एरिथ्रोमाइसिन याद रखेंगे. 4 एंटीबायोटिक तो कंपलसरी याद रखना है. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड वन, द थर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड पढ़ेंगे अभी हम. First one, we have seen alcoholic beverages in industrial product. After that, antibiotics, and third one, organic acid. Organic acid में सबसे पहले lactic acid आ रहा है. Lactic acid is obtained by from lactic acid bacteria. क्या नाम है? lactic acid bacteria. And then second one, butyric acid. ब्यूटारिक एसिड कहां से आ रहा है? कोलेस्ट्रीडियम, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड आया. देन सिट्रिक एसिड है. सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर. ठीक है, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड भी याद रखिए. एसिटिक एसिड विनेगर बोलेंगे. एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई. तो यहां पर याद रखिए लैक्टिक एसिड जो बन रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया. ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया. एस्परजिलस नाइगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, ये फंगस से बन रहा है.
Acetobacter aceti is obtained from bacteria. Okay, and you may ask what is the use of these organic acid? Organic acid, these organic acid add flavor as well as preservative in food. Flavor, flavoring agent plus food preservative के वैसा यूज कर सकते हैं आप. Food preservatives. ठीक है. So these are all microbe in industrial product. So far we have discussed. In industrial product हम 3 complete कर चुके हैं. Alcoholic beverages, antibiotics and organic acid. So far आज की क्लास में हम जो डिस्कस करे हैं microbes in household product completed and microbes in industrial product we have completed 3. Still enzymes पढ़ना है और bioactive molecule पढ़ना है in industrial product. So from today's class how to prepare, आज की क्लास से जितने भी मैं माइक्रोब के नाम दिया हूं जैसे एसिटोबैक्टर एसिटाई है, एस्परजिलस नाइगर है, स्ट्रिप्टोकोक्कस है. सो नेम्स यू हैव टू मेमोराइज, है ना, प्रैक्टिस करना है उसको. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. अभी हम कंटिन्यू करना है. वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू.